So now, moving to the next, something wonderful that I must say before I welcome her. I've been receiving good words, from people when I started with Samviti. Many people talking many things, and I treasured them within. પણ એક કોમ્પ્લિમેન્ટ એવો છે ને કે જે મારા શિક્ષકના હૃદયમાં સ્થિર થઈ ગયો છે. મારામાં ઘણા બધા હૃદય ધબકે છે એવું હું અનુભવું છું. એક હું પોતે છું, એક હું યુનિવર્સિટીની શિક્ષક છું, એક હું પોતે જે લખું વાંચું છું, કવિ છું, એક હું જે સમિતિ ચલાવું છું અને ઘણું બધું. પણ એ જે મારા શિક્ષકના હૃદયમાં વસી ગયેલો કોમ્પ્લિમેન્ટ છે એ મને સંવિતિના એક સાહિત્ય મિત્રએ આપ્યો છે અને એ યુનિક છે અને હજુ સુધી એવું મારી સાથે બન્યું નથી. હજારો વિદ્યાર્થીઓ ભણ્યા હોય યુનિવર્સિટીમાં મેં, પણ આઈ હેવ નોટ ગોટ ધીસ કાઇન્ડ ઓફ વર્ડ્સ ફ્રોમ ધેમ. I want to share it as introduction to her, welcome to the session. સંવિતિના ઓરિએન્ટેશન્સ કરીએ છીએ અમે, એટલે વિમેન who want to be સાહિત્ય મિત્રસ, જે સાહિત્ય મિત્ર થવા માંગે છે એમને એક નાનકડું ઓરિએન્ટેશન આપ્યું છે ઓફ ફ્યુ આવર્સ. અને એમાં વી સી ટુ ઇટ કે એમને પરસેપ્શન મળે કે આ કામ માત્ર વાર્તા કહી દેવાનું નથી, પણ ઇટ ઇઝ મચ બિયોન્ડ. તો એ વાત સામાન્ય રીતે હું કરવા ઈચ્છતી હોઉં છું, કારણ કે આઈ એમ ફૂલ ઓફ દેટ એનર્જી. મારે આ બધું કહી દેવાનું છે બિફોર ધ સ્ટાર્ટ, so that they take off well and then they fly high. So it was one of that orientation, and that lady joined us for the very first time. I had never met her before, and she was very nicely sitting, making notes, Chintal, and sincerely there in the workshop, getting emotional about the things. And જ્યારે પૂરું થવા આવ્યું ને ત્યારે she very warmly and swiftly came to me, hugged me and said, I wanted to be, a literature student. And I have this regret in my life that I never learned literature. But after participating in your orientation program, I feel I have graduated. And thank you for being such a wonderful teacher to me. Neeta Jinwala, Samviti's amazing Sahitya Mitra and my most cherished friend. Thank you. Welcome on board. Thank you so much. Very kind words of Darshini ma'am. Yes, I did not complete my science graduation. लेकिन जब मैंने ओरिएंटेशन फिनिश किया तो मैंने दर्शनी मैम को बोला, आज मैं लिटरेचर में ग्रेजुएट हो गई. इतना कुछ सिखा दिया, इतना कुछ समझा दिया, इतना कुछ अनुभव करवा दिया कि संविति क्या है. तो मैं साहित्य मित्र नीता जिनवाला आज आपके सामने एक 8 वर्षीय बालिका की कहानी लेकर आई हूँ. ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है और सच्ची घटना पर आधारित है. इस कहानी को लिखा है राजेश पोपटे जी ने और उसका संपादित किया है सुधा मूर्ति जी ने. बड़ी खुशनुमा शुक्रवार की सांझ थी. पापा ऑफिस से घर आ रहे. घर आते ही हॉल में देखा, ढूंढ रहे थे. अरे आगी दिखाई नहीं दे रही है. उन्होंने पूछा, कहाँ है आगी? किसी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया. उनकी पत्नी का गंभीर चेहरा देख के वह समझ गए और चिंतित हो गए. वह तुरंत ही घर में जाके देखने लगे. आगी को ढूंढा, देखा आगी शयन खंड के एक कोने में गुमसुम बैठी थी. पापा ने देखा, ये क्या? उसके गाल लाल निशान से भरे हुए थे. आगी ने जैसे ही अपने पापा को देखा, उसकी आंखें भर आई. वह जाके तुरंत ही उसे गले लगा के बहुत सारी चुम्मियां उसके माथे पे दे डाली. फिर आगी को सांत्वना दी.
रुको बेटा, मैं अभी आया। वह गए, बड़े क्रोधित थे और अपनी पत्नी से कहा, ये कोई बात हुई? ये क्या किया तुमने? लेकिन उनकी पत्नी तो जैसे जिद भरी चुप्पी लेके बैठी थी। वैसे भी उनके घर में ये आम चीज थी कि घर में जो कुछ भी होता उनकी पत्नी कभी भी उन्हें नहीं बताती। लेकिन आज उन्होंने ठान लिया था कि वो जानकर ही रहेंगे। वो तुरंत ही गए रसोई घर में, वहां से एक स्टील की थाली ली और जोर से पटकी। इतना भयानक आवाज आने के कारण उनकी पत्नी भी क्रोधित होके वहां पहुंची। ये क्या किया? आपको पता भी है आपकी लाडली ने आज क्या किया है? उसने अपने वर्ग के एक लड़के को इतना जोर से मारा है कि वो अस्पताल में है। और सोचो, अगर उसकी आंख चली जाती तो आपकी बेटी को तो स्कूल से निष्कासित ही कर देते। पिता होने के कारण उनका दिल जैसे बैठ गया। वो सोचने लगे, मेरी आगे शरारती जरूर है, लेकिन वो जानबूझ के किसी का नुकसान नहीं कर सकती है। आग्ने, यही नाम था उसका। कितनी मन्नतें, कितनी प्रार्थनाओं के बाद उनके घर में ये नन्ही सी जान ने जन्म लिया था। बड़े दुलार से पली बली थी वो। आसपास के सभी लोग कितना प्यार करते थे उसे। और वह अपनी मीठी मीठी बातें और विचारों से सबका मन जीत लिया था। और उसके दोस्त ना ही केवल उसके हम उम्र के लड़के लड़कियां थे, पर बड़े बुजुर्ग सब उसके मित्र थे। और उसके पापा, वह सिर्फ उसके पापा ही नहीं, वो उसके दोस्त थे ज्यादा। अब पापा चिंतित होकर मंथन कर रहे हैं, कैसे बात करूं आगे से। वह कुछ भी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे थे। अरे, वो लड़का और उसके परिवार लोगों की क्या हालत होगी। सोचते सोचते उनको लगा, नहीं, मुझे कुछ तो सीख देनी पड़ेगी ना उसको। वह उसके पास गए और उसके साथ ही बैठ गए। आगी के माथे पे हाथ थपथपाया और बोले, बेटा, ये क्या किया तुमने? आगी ने बोला सिसकियां लेते हुए, पापा, वो लड़के ने मेरा ड्रेस खींचा था। अरे, और तुमने उसे इतने जोर से मारा? आगे रो रही थी। रोते रोते कहा, पापा, मैं तो सिर्फ खेल रही थी। वही लड़का सामने से आके मेरा ड्रेस खींच रहा था। मैं तो उसे सिर्फ धक्का देने वाली थी, लेकिन उस समय मेरे हाथ में नोकीली पेंसिल थी, तो वो जाके उसके भावों में लग गई। मैं क्या करती? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। पापा को और भी चिंता हुई। आगे रो तो रही है, वैसे उसकी व्याख्या बहुत ही साधारण है। ऐसे दो बच्चों में होता तो है ही ना, लेकिन उनको सिर्फ ये समझ नहीं आ रहा था कि आगे अभी भी माफी नहीं मांग रही है। उन्होंने आगे को कहा, चलो हम पास के
बागीचे में जाते हैं। दोनों पास के बागीचे में गए, वहाँ बेंच पे बैठ गए। बड़ी चुप्पी थी, कोई कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। पापा तो सिर्फ मन ही मन में सोच रहे थे कि कैसे कैसे आगे से पूरी बात निकलवाऊं। कितनी देर हुई, फिर उन्हें लगा कि अब मुझे कुछ तो करना ही होगा। वहाँ बागीचे में उसके मित्र सब खेल रहे थे और पास के जो पेड़ थे ना, उसकी पत्तियां भी हिलना बंद हो गई थी। मानो सब राह देख रहे थे कि आगे अब भी कुछ बोलेगी और उन्हें कुछ पता चलेगा। पापा ने धीरे से आगे का ठंडा हाथ अपने हाथों में लिया। आगे उनके तरफ ढल गई। कितना महफूज समझ रही थी वो अपने आप को पापा के साथ। फिर पापा ने पूछा, तुम्हें खेलने नहीं जाना है? आगे ने सर नीचे करते हुए अपना सर हिला दिया। पापा फिर बोले, अरे बेटा, ऐसी चीजें तो होती रहती है जब बच्चे खेलते हैं। तुमने उस लड़के को क्यों मारा? आप अपने टीचर को बता सकते थे। आगे के गाल पे अभी भी अपने अश्रुओं के निशान थे, उसके बाल बिखरे हुए थे। फिर पापा ने आगे बोला, आपको पता है बेटा, अगर उसकी आंख फूट जाती, वो पेंसिल की नोक उसकी आंख में लग जाती, तो आपको स्कूल से निकाल देते। और अगर बात ज्यादा गंभीर हो जाती तो आपको पुलिस आके जेल भी लेके जा सकती थी। ये बात सुन के जैसे आगे की आंखों में एक चमक आई, जैसे इन बच्चों को भी पता चलता है कि पुलिस किन लोगों को जेल लेके जा सकती है। उसने अपने पापा से तुरंत कहा, पापा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। यही चीज के लिए तो पापा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। फिर आगे ने पूछा, पापा, आपने महाभारत को टीवी में देखा है? ये क्या? आगे ने तो पूरा विषय ही बदल डाला। पापा थोड़े चिड़चिड़ हो गए, लेकिन उन्होंने दर्शाया नहीं। उन्होंने हाँ में हाँ मिलाकर कहा, हाँ देखा है ना। पापा, जब दुशासन अंकल ने द्रौपदी आंटी की साड़ी खींच रहे थे, तब द्रौपदी आंटी मदद के लिए चिल्लाए थे, लेकिन कोई भी आगे आके उनको मदद नहीं कर रहा था। फिर कृष्ण भगवान ने आके उनकी जब चीख सुनी तो वो मदद के लिए आ गए। और बाद में जब कुरुक्षेत्र का जंग हुआ था, तब भीमा अंकल ने दुशासन अंकल की बाह निकाल दी थी, जिससे उन्होंने द्रौपदी आंटी को छुआ था। और बदले का जो वचन दिया था, तो उन्होंने दुशासन अंकल की छाती को चीर के द्रौपदी के माथे पे डाल दिया था। पापा, आज जब वो लड़के ने मेरी ड्रेस खींची, तो मेरे मदद के लिए कोई नहीं आया था। उसने मेरा ड्रेस इस तरह से खींचा था कि मेरी अंडरवेयर दिख रही थी। क्लास के सारे बच्चे देख रहे थे और कोई कोई तो हंस भी रहे थे। पापा,
ये वही लड़का है जिसने थोड़े दिन पहले हमारी क्लास की रोशनी के साथ भी ऐसा ही किया था। लेकिन मैं अपना अपमान नहीं सह सकती थी, इसीलिए मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ में नोकीली पेंसिल होने की वजह से उसके भौं में लग गई। और पापा, अगर मैं ये नहीं करती तो शायद ये लड़का फिर से एक किसी लड़की को इसी तरह छेड़ता। आप ही कहिए पापा, क्या मैंने गलत किया है? अब पापा सुन हो गए। क्या वह अपनी बेटी पे गर्व करे? आज एक 8 साल की बच्ची ने उन्हें जीवन का कितना बड़ा पाठ पढ़ा दिया था, आत्मसुरक्षा के लिए। वो कुछ नहीं बोल पाए। वैसे कुरुक्षेत्र का जंग का एक कारण द्रौपदी का जो चीरहरण हुआ था वह था, और उन दिनों ऐसे लोगों को भयानक मौत दी जाती थी। आज भी हम हमारे समाज में देख रहे हैं, छोटी बच्चियों से लेके बड़े बुजुर्ग स्त्रियों के साथ ऐसा दुष्ट व्यवहार होता है। क्या उन्हें न्याय मिलता है और ऐसे दुष्ट पापियों को सजा मिलती है? द्रौपदी, राजा द्रुपद की बेटी, वह भी बड़े मिन्नतों के बाद, बड़े प्रार्थनाओं के बाद अग्नि में से प्रकट हुई थी। और मेरी आग्नेय, उसका तो भी अर्थ है ना, आग की बेटी, अग्नि की बेटी। क्या इन दोनों में कुछ समानता है? अगर इसी तरह ये छोटी द्रौपदियां अपना आत्मरक्षण के लिए लड़ ले, तो कोई भी दुष्ट आदमी इस धरती पे नहीं बच सकता है। खैर, वो लड़के के साथ जो भी हुआ दुख है, पर दोबारा वो कभी किसी लड़की को छेड़ने से पहले 2 बार सोचेगा। पापा ने अपनी आगी को सीने से लगा लिया। धन्यवाद। मैं यहाँ कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने ये कहानी इसलिए चुनी कि मैं जब छोटी थी तब हॉस्टल में पढ़ती थी, एक बोर्डिंग स्कूल में। मैं 5वीं कक्षा में थी तब, और एक लड़का मुझे बहुत ही छेड़ता था। मुझे बड़ा गुस्सा आता था, तो मैंने जाके प्रिंसिपल से उसकी कंप्लेन कर दी थी। सर ने मेरे सामने देखा और मुझे कहा, अरे नीता, तुम तो हिम्मतवान हो, अभी जब वो छेड़े तो उसे पास में बुला के एक जोर से चांटा मार देना। मैं बहुत खुश होकर बाहर गई और राह देखती रही कि अब दोबारा वो लड़का मुझे कब छेड़ता है। दूसरे ही दिन जैसे उसने मुझे छेड़ा, मैंने उसको बुलाया अपने पास और जोर से एक थप्पड़ दे डाला था। तो ये कहानी को मैं इसी तरह से रिलेट करती हूँ। सच, हम सभी स्त्रियों को अपनी सुरक्षा खुद करने की ठान लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। तो इससे हमें ये लगता है कि आपसे एक कहानी हमें मिलनी चाहिए। कौन सी कहानी? जो आपका अनुभव। मेरा अनुभव सम्मिति के साथ, आई शुड से, I am honored, I am privileged. I don't have words to speak because, as she said, yes, I have graduated in literature. मैं कहानियाँ तो बहुत ही पढ़ती थी। जब हम स्कूल में होते हैं, दादी के पास से सुनते हैं, मम्मी के पास से सुनते हैं, लेकिन
संविति का जो एक अनुभव है, जो अंदर से हमें हमारे इमोशंस, हमारी जो एक्सपीरियंसेस है वो सब जैसे जीवंत कर देता है। हम लिटरेचर के साथ जीने लगते हैं और हम खुद समवीति यानी अपने आप पे बीती हुई सब चीज़ों को याद करते हैं। और मैं सचमुच बहुत ही आभारी हूँ दर्शिनी मैम का, प्लस संविति टीम जो है, गौरांग सर है, श्रीजित है, पुलिन भाई है, वो लोग इतना अच्छी तरह से हमें जो सम्मान देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा है। और हमें जो प्यार मिलता है, और जो मैडम ने कहा हम एक संविति फैमिली है, हम सभी साहित्य मित्र एक हैं जो आए, आपने बताया, हम उसमें आगे बढ़ते जा रहे हैं। और सचमुच यहाँ जो भी नए लोग हैं, मैं कहूँगी अगर आपको ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस करना है, अपने आप को समझना है, अपने आप को निखारना है, तो ज़रूर समिति को ज्वाइन कीजिए। थैंक यू। We feel honored, Neeta ma'am, for your such wonderful feedback. I also am eager to know how do you feel about this reconnect with Samviti post-COVID? पोस्ट कोविड, हाँ, कोविड हुआ, लॉकडाउन हो गया, जैसे हम लोग भी निराश हो गए, अरे अब जा नहीं पाएंगे, क्योंकि हम लोग हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जाके हमारी स्टोरी शेयरिंग करते थे। मुझे मिला था मेंटल हॉस्पिटल में, बहुत ही मुझे मज़े आते थे वहाँ पे स्टोरी शेयर करने का। लेकिन संविति लॉकडाउन के बाद भी रुकी नहीं, उन्होंने तुरंत हमें कहा कि आप अपने घर में बैठिए और आप स्टोरी कहिए। और गौरांग सर, श्रीजित जी और पुलिन भाई आके हमारा वीडियो लेते थे। और जैसे दर्शिनी मैम ने कहा कि गौरांग सर ने उन्हें बोला कि हम इसको डिजिटल करते हैं और यूट्यूब पे डालते हैं, तो हमारी जो स्टोरीज़ है वो यूट्यूब पे आने लगी। और उसके बाद जैसे ही थोड़ा लॉकडाउन में छूट-छाट हुई, तो हम ऑफिस में भी जाके ये कहानी शेयर करते थे और उसका वीडियो यूट्यूब पे आता था। कोविड के बाद ये पहला मौका है कि हम फिर से इतने सारे श्रोता मित्रों के साथ हमारी स्टोरी, हमारा अनुभव, हमारा जो भी एक्सपीरियंस है वो आज पहली बार मुझे शेयर करने को मिला है। और इसी वजह से आज मैं इतनी ओपन अप हुई हूँ। जो दर्शिनी मैम और गौरांग सर जानते हैं कि वहाँ बैठ के वो स्टोरी बोलना थोड़ा बांधे जैसा होता था, आज खुल के इतने सारे लोगों के सामने स्टोरी बोलना बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस इनिशिएटिव। It's amazing, Neeta ma'am. We also feel that having people in front of you and sharing has different value than looking at the camera and talking. So we definitely share the emotion. Yes, thank How you. do you see yourself with Samviti in future? How would you like to try? Yes, I would love to bring up more and more stories from the literature. I have in fact started reading which I was not reading literature. मैं ज़्यादा स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती हूँ, लेकिन संविति के में आने के बाद मैंने थोड़ा टर्न लिया और लिटरेचर को भी मैंने बहुत ही अहमियत देने लगी मैं। और गौरांग सर हमेशा हमारे हेल्प में होते हैं, जैसे नीलिमा मैम ने भी कहा, वो भी हमें सजेस्ट करते हैं। और ऐसा ही एक सजेशन था अभिसार, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा परफॉर्म करने में, क्योंकि वो पोइट्री थी और उसको मैंने स्टोरी में कन्वर्ट किया था। थैंक यू सो मच। Amazing, Neeta ma'am. We look forward to have such wonderful experience, in times to come. I've seen you beautifully evolving with Samviti. Yes ma'am, thank you so And much. I It's feel all so because of happy you. about your way of walking with Samviti. Thank you ma'am. You really make me feel happy. I had told madam that till I am into my grave I am a Sahitya Mitra now. Yes ma'am. Thank you. Even after that, we will listen to you, we will experience you, through the videos and the thoughts that you will Yes. leave behind. Thank you, Like ma'am. those words which are there in my heart, which you had spoken years ago. Yes. So
That's Yes, how, ma'am. you know, we live with me. Thank you, ma'am. Thank you so much. Nita. Thank you, Thank you. Gauranga. Thank you, Shruti. And- Thank you, Pulin. Thank you, Nita ma'am, for such a wonderful experience and such warm words for Samviti. It motivates.